कि डॉक्टर हमेशा सी सेक्शन के लिए बोलेगा आप घर का काम करो, सारे काम करो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। इट इज अ मिथ बिकॉज अगर लेडी की प्रेगनेंसी का लेबर स्मूथली चल रहा है, जिस तरीके से बेबी का हेड डिसेंड करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, तो कोई भी नॉर्मल डिलीवरी को अपोज नहीं करेगा। जब कंसेप्शन की बात आती है तो एग नंबर, एग क्वालिटी और एग की पेटेंसी, जैसे अभी हमने बात किया कहीं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। सो सिर्फ पीरियड्स का टाइमली रेगुलर आना डजंट मीन that you have no problem and you will be able to conceive smoothly. What is the right time for couples to have IVF? सर हमें 3-4 साइकिल्स हमने देख लिया IUI का भी और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। So if you talk about exercising or yoga, sometimes women say कि मैं घर का काम तो करती हूँ, so that can compensate with the exercise or yoga. आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल चल रहा है, Is it normal to have pain? Because some of the women have more pain, some has less pain, and some feel they don't have any pain. तो जनरली ये जो ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं, ओव्यूलेटरी साइकिल्स का मतलब जिसमें एग रिलीज हुआ है, वो थोड़ी पेनफुल होती हैं। Any myth that you want to bust about periods? सेम वे देयर आर टैबूज रिगार्डिंग दैट यू डोंट एंटर किचन, यू डोंट एंटर टेम्पल ड्यूरिंग द पीरियड्स, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि In once in a week we'll do the exercise, then it is okay and we are saying doing exercise. और ऐसा At नहीं है कि least- एक्सरसाइज करके हमने फिर छोले भटूरे खा लिए। So hello audience, welcome back to our new podcast, and this is not the episode also, this is a very huge topic, and it's about the women health, pregnancy and fertility. So this is, and today we have a very special guest, is Dr. Sadhna Sharma, and she's MD obstetrician and gynecologist, and she has a very vast experience of more than 2 decades, that is 22 plus years of experience, and she is served I think countless patients in her OPD, and she is currently practicing in Apollo Cradle, मिरेकल्स अपोलो क्रेडल। Miracles Apollo Cradle Mediclinic in Gurgaon. So welcome Sadhna ma'am to our podcast. थैंक यू नितिन। And we will definitely bust a lot of myths and do the fact check, and we'll talk about women health, infertility and pregnancy. Yeah. Okay, so she will with over 2 decades of experience, she brings deep expertise and real world insights into the women health. So let's start ma'am. To begin with, can you just share a bit about your journey as a gold medalist? As a gold medalist from Maulana Kalam Azad College from Delhi to with 22 years of experience. So what inspired you to choose this field? So basically, I entered into the medical college, Maulana Azad Medical College, in 1995. And after finishing your MBBS, you have to choose your specialty. And somehow, women health really interested me. I felt that I should make some changes, some improvement in this arena. Moreover, this women health care itself is such a complete field. It has a medical part, it has a surgical part, and there are so many emotional attachments with this because you are bringing new life to the world, and that itself is a very angelic experience. So I chose this obs and gynae as my specialty to bring some changes in the women healthcare right from the adolescence till they are into the old age. That's good to hear, ma'am. So today we will discuss about the basic fact. We'll do the fact checks, and we'll bust the myths that what is going around over here. Ji. So there are a lot of things that is happening. So my first question would be regarding the women health only. So as you know that even today in India, many women are ignoring the health or they don't have time. So especially the working women or the housewives, because they have a lot of responsibilities. So and there are a lot of priorities that they have. But although health should be a priority, so is there any gap, or they ignore that, or they don't have time? देखिए क्या है कि एज सच आजकल के एरा में अवेयरनेस बहुत है, थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया, एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स अवेलेबल जस्ट एट अ वन क्लिक अवे. लेकिन समहाउ अवेयरनेस से एक्शन वाली जो लाइन है वो अभी भी डेफिशिएंट है.
क्योंकि there could be some fear, there could be some stigma, and then females give more priority to their family as compared to themselves. तो कहीं ना कहीं उनको इस मैथ से बाहर आना पड़ेगा कि अपने को पहले प्रायोरिटी देनी है. सेल्फ प्रायोरिटी आप देंगे, आप खुद हेल्दी रहेंगे, तभी आप फैमिली को हेल्दी रख पाएंगे. बिकॉज वॉट आई फील इज विमेन इज द बैकबोन ऑफ अ फैमिली. So she has to take care of herself, and for that she has to prioritize herself. That I agree on. I agree. So related to the women health only. So if you talk about exercising or yoga, or sometimes women say कि मैं घर का काम तो करती हूँ, so that can compensate with the exercise or yoga. No, देखिए क्या होता है कि जो आप घर का काम फीमेल्स करती हैं वो somehow बॉडी उसके लिए एडजस्ट हो जाती है, तो वो एक्सरसाइज में नहीं आता. आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल चल रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, समहाउ आपका एक्सरसाइज वाला कंपोनेंट बड़ा कम है. एंड अगर मैं बोलूँ ईटेबल्स की बात अगर करूँ तो अगेन इट्स जस्ट अ वन क्लिक अवे. आपका मन किया, आपने अभी ऑर्डर किया, 15 मिनट खाना आपके घर में आ जाता है. सो समहाउ दिस लीड्स टू व्हाट हैपेंस इज कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड ये इनएडवर्टेंट ईटिंग हैबिट्स, this has led to increased of obesity and weight related issues. तो यहाँ पे रोल आ जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल का. तो विमेंस को भी अपना ख्याल रखना चाहिए. एंड येस, एक्सरसाइज शुड बी अ डेली पार्ट इन देयर रूटीन. ये ज़रूरी नहीं है कि योगा इज़ द बेस्ट, कि स्विमिंग इज़ द बेस्ट, कि एरोबिक्स इज़ द बेस्ट. मैं ये बोलती हूँ कि आपको आपके शेड्यूल में जो ठीक लगे, जो बेस्ट लगे, जो आप बिना अपने घर के सिस्टम को हिलाए हुए कर सकती हैं, वो आप कीजिए. यू जस्ट हैव टू डेडिकेट 20 to 40 minutes डिपेंडिंग अपॉन वॉट टाइम यू हैव डेली टू योर दीज एक्टिविटीज़. So ma'am, related to this only, that you have a 22 plus years of experience, that is more than 2 decades. So आपने वो एरा भी देखा जब इंटरनेट इतना फ्रिक्वेंट नहीं था, इतने फ्रिक्वेंटली मोबाइल्स वर नॉट अवेलेबल. सो व्हाट यू से कि जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं था तब प्रॉब्लम ज़्यादा थी, मतलब आपके पास जो पेशेंट आते थे, वुमेन पेशेंट की, या फिर अब कुछ चेंज हुआ डिजीज़ में कि जैसे पहले कुछ और इश्यूज़ थे, अब कुछ और इश्यूज़ हैं, या अवेयरनेस बढ़ गई है तो इश्यूज़ कम हो गए हैं, तो ऐसा है क्या? देखिए क्या है कि अब अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से अब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, समहाउ हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया. और जैसा मैंने अभी बताया, इनएडवर्टेंट ईटिंग हैबिट्स, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसकी वजह से ओबेसिटीज़ इश्यूज़, वेट रिलेटेड इश्यूज़, उसकी वजह से फीमेल्स में PCOS का इतना इंक्रीज़ होना. इनफैक्ट नाउ डेज इट फील्स लाइक PCOS इज़ एन एपिडेमिक. जब हम पढ़ा करते थे वे बैक इन 95, इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं था जो कि आज है, और वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है. तो इंटरनेट आने की वजह से एक फ़ायदा हुआ है कि नाउ यू आर अवेयर. पहले पेशेंट्स को ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होती थी, अब पेशेंट खुद पढ़ के आ जाता है कि मैडम मुझको तो ये है. तो जब पेशेंट खुद बताता है कि मैडम मैं ना PCOS पेशेंट हूँ, आई ऑलवेज टेल देम, डोंट टेल मी दैट वेदर यू आर PCOS, डोंट लेबल योर सेल्फ, टेल मी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू ट्रीट. ये ब्लैक एंड वाइट में जो लिखा है या रिपोर्ट्स में जो लिखा है, हम उसको ट्रीट करने के लिए नहीं बैठे हैं. आप किस कंसर्न के साथ आ रहे हैं, हम उसके लिए बैठे हैं. तो इंटरनेट से सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ी है, अवेयरनेस. एंड डेफिनेटली व्हेन पीपल आर मोर अवेयर, तो वो कई बार मेडिकल हेल्थ के लिए जल्दी आ भी पाते हैं, राइट. तो ये एक डेफिनेटली एक चेंज हुआ है. वो चाहे डर के आते हो कि हमको तो रिपोर्ट में ये लिखा है, ये लिखा है, बट इस रीज़न से कई बार दे अप्रोच, एंड आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिर हम उसको होलिस्टिकली फिर आपको समझा पाते हैं, उसको हैंडल कर पाते हैं. एंड लेटली आजकल कैंसर्स के इंसिडेंट्स डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़े हैं. डेफिनेटली कुछ हद तक रोल अवेयरनेस का भी है, बट अगेन आपका है लाइफस्टाइल प्लेज अ मेन रोल. देन योर एनवायरनमेंट, yes, environmental toxins are there. This is somehow leading to more of cancers. longevity बढ़ गई है. पहले जो longevity सिर्फ 60 years तक की एक्सपेक्टेड मानी जाती थी, वो अब 80-90 years तक चलती है. तो ऐसे में बाद में जीन्स में स्पोराडिक म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं. सो इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स हैव इंक्रीज. सो येस, सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इंक्रीज हुई है, बट सम प्रॉब्लम्स कम भी हुई हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, तो आप कई बार जल्दी पहुंच जाते हैं. Although there is a difference between a rural population and a urban population, but ठीक है. It is the same thing. So this is the positive aspect of the social media that you are talking about. So coming to the women problem, so as you said, PCOS or PCOD,
is just like epidemic. Every, I think, third or fourth woman I read somewhere is having the same problem. So if you talk about PCA, so what is exactly so common, or what is the reasons of that? So that, or we can say, what is the root cause of it? देखिए क्या होता है कि PCOS में जो ओवरीज होती हैं, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस ट्यूब्स एंड ओवरीज हैं, जो ओवरीज होती हैं उसमें एग्स ठीक से नहीं बनते हैं, तो समहाउ उसकी वजह से ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होती है, पीरियड्स आपके डिले हो जाते हैं, वेट गेन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब एडिटिव फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ाते हैं और ये इटसेल्फ वेट गेन में करता है. सो समहाउ दिस इज़ अ विशियस साइकिल कि एक चीज़ इसको बढ़ा रहा है, उससे ये वेट गेन हो रहा है, उससे वो फर्दर PCOS बढ़ रहा है. दिस क्रिएट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस जिससे कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं, फेस पे या बैक पे अनवांटेड हेयर्स का आ जाना होता है. देन द लेडीज़ इन दैट रिप्रोडक्टिव लाइफ एज ग्रुप वो इनफर्टिलिटी से सफ़र करती हैं. सो PCOS इज़ अ स्पेक्ट्रम. इट्स Okay. नॉट अ डिजीज एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स अ सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स कि इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, हर्सुटिज्म है, इसमें इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं. तो ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स को हम PCOS बोलते हैं, जिसका रूट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट फॉर्मेशन ऑफ एग्स इन दी ओवरीज. तो मुझे इनएडिक्वेट फॉर्मेशन ऑफ एग्स होता है, मतलब इसका रीज़न जैसे स्ट्रेस होता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, या कुछ फिर हद तक sedentary? स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी, इनएडवर्ट ईटिंग हैबिट्स, अपने वेट पे कंट्रोल ना करना, ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं. So again, we are all aware that these are the factors. So we should include the exercise, or we should go to the doctor when there is small problems also. See, diet, rest and exercise, these are the three main pillars which you should focus upon. तो healthy lifestyle goes in a long way to mitigate all problems. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्टर्स के पास विजिट कम से कम हो, तो बेटर है कि आप अपनी इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें. So what is the ideal exercise time that daily woman should invest in that? देखिए क्या होता है आजकल ना, फीमेल्स बहुत बिजी हैं और उनको घर भी देखना पड़ता है, मल्टीटास्किंग कर रही हैं. तो मैं इसलिए आइडियल टाइम नहीं बोलूँगी. अगर उनको लगता है कि वो सुबह 5 बजे उठ के पहले घर में खाना बना रही हैं, उसके बाद ऑफिस जा रही हैं, फिर आ रही हैं, शाम तक थक जाती हैं, आई थिंक दे कैन टेक अ 15-20 मिनट्स ऑफ पावर नैप एंड उसके बाद आप पहले अपनी एक्सरसाइज करिए. और अगर आपको लगता है कि आप सुबह आधा घंटा निकाल सकती हैं तो सुबह. तो आइडियल टाइम कुछ नहीं होता. इट इज़ when you have a time, you just find out that 30 minutes for yourself. At least हम अपनी बॉडी के लिए इतना तो कर सकते हैं कि खुद के लिए 30 minutes निकाल लें, so that we can stay fit and healthy and so that our families can stay fit and healthy. So personally, what you choose, that it is better for yoga or exercise? See, any kind of physical activity, 30 to 40 minutes on a daily basis, 5 days a week is good enough. May it be aerobics, may it be Zumba, may it be your gym or weight training, or may it be your like swimming and all, or your yoga. It all depends upon कि आपका पहले तो वेट क्या है और आप उसको क्या आप चाह रहे हैं. जैसे अगर वेट लॉस के फॉर्म में चाह रहे हैं तो आपको योगा, अगर आप करना चाहते हैं तो पावर योगा की तरफ जाना पड़ेगा. मेंटेनेंस में फिर आप नॉर्मल योगा पे आ सकते हैं. जब आपको एक्यूटली अपना वेट इमीडिएटली रिड्यूस करना होता है तो पहले आप कार्डियो पे ज़्यादा जाते हैं और फिर आप मेंटेनेंस के लिए बाकी चीज़ें करते हैं. अगर आप मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में हैं तो आपके लिए वेट ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो व्हाट यू कैन डू इज़ मे बी हफ्ते में 2 दिन आप वेट ट्रेनिंग करें, बाकी दिन 2 दिन आप योगा करें, 2 दिन आप कार्डियो करें. इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं. So that's a good thing. So audience, I think exercise is the best way to mitigate all these things, and it is a preventive measure. So Yes. this thing will not come into the picture. So exercise is the one thing, and consistency is the key for that. Yes, We yes. should be consistent. We are, it's not the case that in once in a week we'll do the exercise, then it is okay and we are saying doing exercise. और ऐसा At नहीं है कि least एक्सरसाइज करके हमने फिर छोले भटूरे खा लिए. people do that. People do that कि That's what I'm telling you. एक्सरसाइज मैं 5 days करूँगा, सैटरडे संडे में छोले भटूरे खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा. सो दैट्स वाई पीपल, सब पीपल हैव देयर डिफरेंट गोल्स. किसी को एथलीट बनना है, किसी को अपनी बॉडी फिट रखनी है, और किसी को कंपनसेट करना है कि मैं अच्छी डाइट सब कुछ खा सकता हूँ क्योंकि मैं 5 days एक्सरसाइज करता हूँ. सो दे हैव डिफरेंट गोल्स. बट नहीं, एक्सरसाइज देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा खा सकते हैं. आप वंस इन अ वाइल, मे बी वंस इन 2 weeks और सो यू कैन टेक अ लिबर्टी. बट एट अ डेली बेसिस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि व्हाट यू आर ईटिंग. यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट योर प्लेट. योर प्लेट शुड बी हाफ, लाइक इट शुड कंटेन फ्रूट्स,
बिकॉज वहाँ से वाइटामिन एंड ऑल आएंगे. इट शुड हैव 40-50% कार्बोहाइड्रेट, 15-20% प्रोटीन, 5-10% फैट. तो जब आप प्लेट अपनी लगाते हैं, you see it wisely what is there in your plate. So thank you for that, ma'am. So now coming to this other question, that any myth that you want to bust about periods that people are not देखिए, aware. पीरियड्स के रिगार्डिंग काफ़ी मिथ्स हैं. जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज करनी है तो मैम पर 5 दिन तो एक्सरसाइज करनी ही नहीं जा पाती, मेरे तो पीरियड्स थे. सो ऐसा कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कहीं कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं कर सकते. यू कैन वेरी वेल डू इट डिपेंडिंग अपॉन योर कम्फर्ट, पर से ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. Same way there are taboos regarding that you don't enter kitchen, you don't enter temple during the periods. या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम वो पीरियड्स वाला ब्लड ना इम्प्योर होता है, वो निकल जाना चाहिए, हर महीने नहीं आ रहे हैं तो बॉडी में इम्प्योरिटी बढ़ रही है. बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये इम्प्योर ब्लड है और बाकी ब्लड आपका प्योर है. इट इज़ जस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लड. क्या होता है कि जो यूट्रस के अंदर लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग बिल्ड होती है, वो शेड होती है, बट दैट डजंट मीन दैट इट इज़ इम्प्योर. सो दीज आर ऑल जस्ट मिथ. एंड इनफैक्ट अभी तो WHO ने इनिशिएटिव लिया हुआ है. अब आजकल मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो हम स्कूल में ही कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द 6th classes onward. So that's a very very good initiative to get these kids aware about about the menstrual health. So again coming to the next question, this is related to the again related to the periods. Is it normal to have pain? Because some of the women have more pain, some has less pain, and some feel they don't have any pain. So is it normal to have some pain or? See what happens is, पहले तो पेन के पीछे की पैथोलॉजी समझते हैं, क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, एक एग बनता है, वो एग रिलीज होता है. अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो डिके होके ऑब्वियसली आफ्टर 14 days ऑफ ओव्यूलेशन फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होता है. तो जनरली ये जो ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं, ओव्यूलेटरी साइकिल्स का मतलब जिसमें एग रिलीज हुआ है, वो थोड़ी पेनफुल होती हैं. सो माइल्ड अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट कैन बी देयर. हाउएवर, अगर डिस्कम्फर्ट मॉडरेट टू सीवियर है, अगर इस लेवल पे है कि आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है, या अगर आप स्कूल में हो, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो दिस इज painkiller. दिस इज नॉट नॉर्मल. दैट मीन्स नाउ इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि कहीं हम किसी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी से तो नहीं डील कर रहे हैं. अगर साइकिल बिल्कुल पेनलेस होती है तो कभी कभी वो एनओव्यूलेटरी होती है, जो कि PCOS का भी एक वन ऑफ द सिम्टम होता है. माइल्ड पेन के लिए आई ऑलवेज से टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं, पेन किलर्स लाइक मेफ्टाल्सपास एंड ऑल, यू कैन टेक देम. ऐसा नहीं है. फिर लोग आते हैं मिथ के साथ कि अगर हमने ये टैबलेट ले ली तो ये हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगा, वो अपने बच्चों को भी नहीं देते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. 1 या 2 गोली पीरियड्स में महीने में 1-2 बार लेने से कोई भी हैबिट फॉर्मेशन नहीं होती है. डोंट लेट योर चाइल्ड सफ़र, डोंट लेट योर सेल्फ सफ़र. सो माइल्ड अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, इट इज़ अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू शुड बेटर टेक इट. एंड इफ़ इट इज़ मॉडरेट टू सिवियर तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए, और अगर उसको कोई ट्रीटमेंट वारंटेड है तो वो कर दिया जाए. So that's a very good information to share, that I think in periods you can, if there is a mild pain, you can take over the counters medicines with the help of doctor. They can prescribe it. Okay, so you can take the medicine. It is okay to have medicine, I think once in a month or twice in a month. Okay, that's okay. So it is normal. Anything you feel abnormal, extraordinary pain is there, then you can visit to the doctors and they consult them, and then only take the medicines and start your cure journey. Okay, so now coming to this other part of this podcast regarding the fertility. The contribution of both the partners is very important, male and female. But if you talk about here in India, most of the person says that only the female contribution is more, because agar woman is not conceiving तो women के test होंगे सारे. So what do you feel in your OPD? You have seen a lot of patients, I think countless patients. So देखिए, it is a truth? No, it is not a truth. पहली चीज़ तो फर्टिलिटी इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पार्टनर्स. ठीक है, जब भी OPD में आते हैं, आई एम हैप्पी टू सी कि आजकल कपल एक साथ आते हैं. पहले के टाइम जैसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल OPD में आ रही है. सो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट वे दैट द पार्टनर इज़ कमिंग अलॉन्ग विद इट.
देखिए, इनफैक्ट अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है, यूरोपियन सोसाइटी है, सबकी गाइडलाइंस यही हैं कि मेल एंड फीमेल बोथ शुड बी इन्वेस्टिगेटेड वंस अ कपल इज एक्सप्लोरिंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि females are responsible for 33% of causes, but males are also responsible for almost 33% of causes, and then there is a unexplained infertility which is 33%. ये मैंने आपको एक रफ बता दिया कि 1/3 1/3 1/3. तो female is responsible for 1/3, males are responsible for 1/3, and unexplained या both factors भी बोल सकते हो आप, वो 1/3 होते हैं. तो इसीलिए जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कपल को इन्वेस्टिगेट करते हैं. इट इज़ नॉट द फीमेल ओनली हु इज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जिसमें कि फीमेल्स के हार्मोनल टेस्ट होंगे, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस होगा, सो दैट वी कैन कम टू कंक्लूजन कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं, पहली चीज़, और है तो कहाँ है और किस कहाँ पे एड्रेस कर देना चाहिए. So that's a one, I think, very informative statistics that only 33% the female is involved and 33% male is also involved, and both the factors are involved rather than that. So 1/3 everyone. Yeah. So that's a very good statistic. So I think so whenever there is any issues regarding the if the female is not conceiving, then I think couple is required to get investigated, and then doctor will go ahead with the treatment, whatever the treatment is. Yeah. Okay. So both the partners play almost the equal role. Yes, Right. yes. So thank you, ma'am. So now in the fertility only, coming to the next part is role of age. What's the role of age in that fertility? Because now due to the career responsibilities, you can say, or the other responsibilities, couples are planning their to extend their families in late 30s or after 30s. So is it okay, or it impacts? See, the thing is that a female is born with a fixed number of eggs, right? And somehow, after the age of 35 or so, the fertility starts declining. In fact, आजकल तो 30 के बाद ही हम थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन देखना शुरू कर दिया है हमने. तो नंबर ऑफ एग्स और क्वालिटी ये 30 के बाद थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगती है. अगर मेल्स में बात करूँ, मेल्स में जो डिक्लाइन आता है वो ग्रेजुअल आता है, लेकिन और भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होने शुरू हो जाते हैं. सो एज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो इसीलिए हम बोलते हैं जो पीक फर्टिलिटी होती है वो होती है 25 to 28 ईयर्स के बीच में. बट बिकॉज ऑफ करियर एंड सो मैनी थिंग्स, पीपल आर प्लानिंग लेट नाउ अ डेज. डिलेड मैरिजेस हो रही हैं, मैरिजेस डिलेड होती हैं तो ऑब्वियसली कंसेप्शंस भी डिले होते हैं. तो लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं वो एज फैक्टर कभी कभी हिट कर जाता है, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक इज ऑलवेज टिकिंग. every month you are depleting some number of eggs. तो वो डिक्लाइन होने की वजह से yes, at times you do face a problem in conceiving. So that is how the infertility is on rise nowadays. All right. So this is also good to know thing. So I'm coming to this again. This is the role of age. So I think you know about Meera Rajput, Shahid Kapoor's wife. So what she planned, I think they got married at the age of 21. Then they planned babies. Then they started. Then Meera Rajput started her career, right? So now the celebrities are also changing. Previously, the celebrities are having the babies, I think, after 35 or the late 30s or 40s. Okay, so these things are changing, so that is a good thing. And I think in Indian culture, previously women also get married early, I think 21 or 22, and they plan their babies, and then it will go smooth. So you are saying to conclude that, so age is the main factor. So I think the ideal age, as ma'am said, is 25 to 28 to conceive, and accordingly. When coming to the second part of this, we have seen people now, as the facilities are available, medical advancements are there, so females are freezing their eggs. So is it okay to do that? Yeah, that's a very very good option. देखिए क्या होता है कि somehow अभी आपने सोचा ही नहीं अभी मैरिज का, अभी आप करियर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है, नंबर ऑफ एग्स तो खत्म हो जाएंगे जब तक आप पहुंचेंगे, या अभी शादी हुई है, यू आर नॉट प्लानिंग इन अनदर 5-6 ईयर्स. सो ऐसे में हम आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं अगर एग रिजर्व्स, अगर हम एग्स को टाइमली हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं तो फिर वो वाला फैक्टर हमारे दिमाग में नहीं रहता कि ओके अभी हम बिल्कुल अभी जैसे डायर इमरजेंसी है कि अभी हमें 1-2 साल में प्लान कर लेना चाहिए. देन यू कैन टेक योर टाइम एंड देन मे बी वेन एवर यू आर रेडी, एटलीस्ट एक सिक्योरिटी है दैट योर एग्स आर ऑलरेडी प्रिजर्व्ड एंड क्रायो प्रिजर्व देयर, एंड यू कैन यूटिलाइज देम व्हेन
whenever you are ready mentally and emotionally and career wise, financially also, that now I can think of planning. Thanks for that. This is also the way that you can freeze your eggs. Now the medical advancements are there, so you can just after that you can use them Yeah. to extend your family. Yes, So yes. that is also a good Although thing. ये होगा फिर IVF से ही, मतलब वो Okay. एक्सपेक्ट क्योंकि आपने एग्स बाहर निकाले हुए हैं तो डेफिनेटली वो IVF इक्सी वगैरह से ही कंसेप्शन होगा, मगर एक वो वाला फैक्टर खत्म हो गया कि अब हम कंसीव ही नहीं कर पा रहे, अब एग्स खत्म हो गए, अब क्या करें. We can say this is the alternate way. It is although bit tough, but there is a way. We देर can इज़ say अ that. वे. अगर आप अभी श्योर नहीं हैं और अभी करियर में टाइम लगेगा, इट इज़ अ गुड आइडिया टू प्रिजर्व द एग्स. Okay. So what is the ideal age to preserve the eggs? आइडियल एज भी यही है हमारी 25 से 28, क्योंकि इस समय पे एग रिजर्व बहुत अच्छा होता है. Coming to again so the same topic of fertility. So there are the issues now. We have seen the issues of fallopian tube blockage. So why this is happening? What is it and why this is happening? What is fallopian tube? देखिए, अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस है, यूट्रस के साथ एक ट्यूब है और फिर ओवरी है. जो एग्स होते हैं वो ओवरी में बनते हैं और ट्यूब उसे पिक करती है. जिस समय पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म्स मूव करते हैं ट्यूब तक, फर्टिलाइज हो जाता है और फिर वो फर्टिलाइज्ड एग बाकी की ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में आता है. ये एक सर्किट है. सो आप ये बोल सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब एक तरीके का पैसेज है फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस एंड फ्रॉम द यूट्रस, राइट. सो अगर किसी वजह से, अब वो वजह हो सकती हैं इन्फेक्शंस, मे बी प्रीवियस सर्जरी, तो होता क्या है कि अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, Okay. तो अगर ट्यूब ब्लॉक हो गई तो वो पैसेज हमारा फ्री नहीं रहा. अगर पैसेज फ्री नहीं रहा तो ऑब्वियस है कि कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ से एग पिक होके आएंगे ही नहीं, वहाँ से स्पर्म वहाँ जा ही नहीं पाएगा. और होता क्यों है, या तो कई बार आपको डिलीवरी के बाद, अब तो ये वाले केसेस हम नहीं देखते हैं पुरपेरल सेप्सिस, अदरवाइज गवर्नमेंट फैसिलिटी में कई बार हम ये देखते थे पुरपेरल सेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है डिलीवरी के बाद या अबॉर्शंस के बाद, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है. या फिर कुछ इन्फेक्शंस हैं लाइक क्लेमाइडिया, गोनोरिया, इवन ट्यूबरकुलोसिस. TB इज़ रैम्पेंट इन इंडिया. नाउ द इंसिडेंट्स आर डिक्रीजिंग, लेकिन उसकी वजह से अगर किसी को होता है तो भी जो ट्यूब होती हैं वो बीडेड हो जाती हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, उनके सीलियाज ख़राब हो जाते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम है कि स्पर्म को ट्रैवल करा के लेके जाना है और उसका काम है ओवरी से एग्स को उठा के लाना है. तो अगर वो फंक्शन ही ठीक नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली आगे का जो फर्टिलिटी वाला पार्ट है वो नहीं हो पाएगा. या आपकी कभी कभी कोई पुरानी कोई सर्जरी हुई है, सपोज कोई बहुत बड़ी सिस्ट थी या एंडोमेट्रियोसिस है, तो इन सब की वजह से भी फाइब्रोसिस हो जाता है. फाइब्रोसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कुछ जाले बन गए. अगर कोई जाले बन गए तो वो ट्यूब बीच में से जा रही है और अगर वो एडहेजन्स में फंस गई तो भी वो काम ठीक से नहीं कर Just like a पाएगी. spider web. या ट्यूब किंक हो गई है उस वजह से, तो भी वो वर्क नहीं करेगी. तो ये वाले फैक्टर्स होते हैं. और अगर 2 ट्यूब्स हैं हमारे पास, सपोज करिए दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता. ईदर यू गो फॉर अ सर्जरी, गेट अ ट्यूबल कैनुलेशन डन, गेट देम ओपन. अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है देन स्टिल यू कैन थिंक ऑफ अ नेचुरल कंसेप्शन. अदरवाइज IVF इज़ द ओनली सोल्यूशन. अगर मैम देयर आर 2 fallopian tubes, अगर एक पूरा ब्लॉक्ड है वो नहीं हो सकता, वो क्योर नहीं हो पा रहा है, तो 1 is enough to conceive. येस, 1 इज़ इनफ टू कंसीव, लेकिन आपके पास 12 महीने में से 6 महीने बचेंगे, Okay. बिकॉज इट इज़ दी ऑल्टरनेट साइज ओवरी जो कि एग्स बना रही है. नॉर्मली इस तरीके से होता है, Okay. बिल्कुल एकदम मैथमेटिक्स की तरह तो नहीं चलती हैं चीज़ें, बट दैट मीन्स एक साइड से एग ऑल्टरनेट मंथ्स बनेंगे. तो अगर एक साइड की ही हमारी ट्यूब फंक्शनल है तो यू हैव जस्ट ओनली 6 months with you to conceive. Okay, that is also a new fact for me also. I think for audience also, this happens alternately on alternate months. So again, related to the fallopian tube only, ma'am. So if cure is there, okay, if one is working and one is not working, okay, so or both are not working or both are working, so is there any symptoms that female have regarding related जनरली to it? देखिए फीमेल्स को ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं, या बीच बीच में कभी कभी इन्फेक्शंस होते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ में, आप उनको ट्रीट कर देते हो, लेकिन अब उस इन्फेक्शन की वजह से फाइब्रोसिस होकर ट्यूब ब्लॉक हो गई, ये आप फेस देख के या हिस्ट्री देख के नहीं पता लगा सकते. इसके लिए आप फर्दर टेस्टिंग करते हो जिसको हम बोलते हैं HSG, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी. तो इसमें हम डाई डालते हैं और वो देखते हैं कि हमारी ट्यूब्स पेटेंट हैं कि नहीं. और अगर कई बार इसको हम लैप्रोस्कोपी किसी और रीजन से कर रहे हैं तो भी हम ट्यूब्स को चेक कर सकते हैं. उस मेथड को क्रोमोपर्ट्यूबेशन बोलते हैं, जिसमें कि मिथिलिन ब्लू डाई डाली जाती है और देखा जाता है कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, ट्यूब्स के थ्रू डाई निकल जानी चाहिए.
So is there any symptoms also कि फीमेल को पता लग जाए कि नहीं मेरी fallopian tube नहीं, blocked as है? such There there is is no no such symptom. symptom. Only कोई और प्रॉब्लम होगी, मतलब कुछ भी. नहीं, जब इनफर्टिलिटी का वर्कअप चल रहा होगा तभी पता चलेगा, या फिर आपको कोई पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी है तो हम ये मान सकते हैं आप कंसीव नहीं करेंगे, कहीं ट्यूब तो नहीं खराब होगी, तो इट्स जस्ट अ इंडेक्स ऑफ सस्पिशन. Okay. देन यू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड तब पता चलेगा कि व्हाट इज द सिनेरियो. Any fertility myth that you want to bust? देखिए, फर्टिलिटी मिथ एक बड़ा कॉमन है, जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में बोलते हैं कि मैडम हमारी साइकिल तो नॉर्मल आ रही है और तो कंसीव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनके हिसाब से साइकिल का नॉर्मल आना मतलब सब कुछ नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं होता है. साइकिल इज़ वन थिंग, कंसेप्शन इज़ अनदर थिंग. बिकॉज जब कंसेप्शन की बात आती है तो एग नंबर, एग क्वालिटी और एग की पेटेंसी, जैसे अभी हमने बात किया कहीं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं. सो प्लस इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपका थायराइड हार्मोन, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये चीज़ें कंट्रोल में हैं कि नहीं, या ये अब नॉर्मल है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को अफेक्ट कर सकती हैं. सो सिर्फ पीरियड्स का टाइमली रेगुलर आना doesn't mean that you have no problem and you will be able to conceive smoothly. Because अगर आप conceive नहीं कर पा रहे हैं then definitely you should seek help, because there are additional factors to it. So ma'am, again in this fertility myth, so there is one question that, as you said कि fallopian tube अगर blocked है but periods come on time, and so but it doesn't mean कि conceive हो सकता है कि सब कुछ normal है, ठीक है. तो fallopian tube blocked है तभी periods टाइम से आ सकते हैं, कोई बिकॉज प्रॉब्लम नहीं है? फेलोपियन ट्यूब का पीरियड से कोई लेना देना Okay. नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला, इट इज़ जस्ट अ पैसेज फॉर कंड्यूट, यू नो. Okay. जो मेंस्ट्रुअल फंक्शन है वो यूट्रस का फंक्शन है. यूट्रस में लाइनिंग बढ़ रही है और वो लाइनिंग शेड हो रही है, उसमें फेलोपियन ट्यूब का कहीं कोई हाथ नहीं. Now coming to the next question, again everybody knows about the fertility. The main cause is also lifestyle, nutrition. So as a fertility treatments are not alone enough. So what else that we require, any changes in the lifestyle or nutrition for the conception? देखिए क्या होता है आजकल ना, ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है. इनफैक्ट अभी इंडिया को तो ओबेसिटी कैपिटल ही बोलने वाले हैं. सो कहीं ना कहीं फीमेल्स का जब वेट ज़्यादा होता है तो ये ओव्यूलेशन को अफेक्ट कर रहा होता है, और ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज़ होना. तो एग रिलीज़ को अगर अफेक्ट करेगा तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा. तो जब भी मेरे पास कपल आता है तो पहली चीज़, अगर मुझे दिख रहा होता है कि वेट ज़्यादा है, तो मैं ये बोलती हूँ कि 5% वेट लॉस करने में ही मेहनत करो. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको वो बात अगर आ जाती है समझ में और आप उसकी तरफ प्रोग्रेस करने लगते हैं, तो कई बार पेशेंट सिर्फ वेट लॉस करने से ही कंसीव कर लेता है. क्यों? क्योंकि उससे आपका ओव्यूलेशन रेट बढ़ जाता है. फिर जब आपके हार्मोनल पैरामीटर्स इम्प्रूव हो जाते हैं. एंड मोर ओवर इतना ही नहीं है, जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्री प्रेगनेंसी हेल्थ भी मैटर करती है. यू कैन नॉट स्टार्ट योर प्रेगनेंसी विद 110-120 kg of weight, right? Because this will, then you should be ready for certain complications during the pregnancy time also. तो पहला तो चीज़ है फर्टिलिटी अचीव कर पाना, और दूसरा होता है कि जब आप कर लो तो उसको आगे मेंटेन करना स्मूथली. तो इसीलिए वेट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और सिर्फ 5% वेट लॉस कम करने से आपकी फर्टिलिटी रेट अगर इम्प्रूव हो जाती है, then I think you should definitely give it a worth. But again, it is a fact for us because obesity, we think, I think this is not a reason at all. But you said कि obesity is also a reason. It seems small for us, but it may be the big reason. It is a very big reason. Even if you said कि after if you conceive also, then it might cause some complication during pregnancy. Yes. So weight management is the, I think, Is the key. That's good. Thank you, ma'am. So again, coming to the nutrition part in that. See, nutrition again, it goes that you should not be indulging in junk foods, as the now population is. I'll not name them, उनका business है. But the thing is that yes, जब आप अपनी plate आप लगा रहे होते हैं, you should see nicely what is there in your plate. You cannot be having high glycemic index foods all the time, because उससे सिर्फ आपका weight ही gain होगा. तो आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड फ्रूट्स, ये आपको प्रॉपर बैलेंस वे में लेना चाहिए. सी, बैलेंस लाइफस्टाइल इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल शुड फॉलो. एंड फीमेल्स का क्योंकि फर्टिलिटी से डायरेक्ट कोरिलेशन हो जाता है, तो ऑफ कोर्स दे टू शुड फॉलो. Okay, that's great. So nowadays we can see every corner in India have the IVF centers. There is a IVF boom. So is it the awareness
or the infertility is increasing? So what is it all about? देखिए आजकल जैसा हम अभी इतनी बात कर चुके हैं कि मैरिजेस जो हमारी होती हैं वो लेट मैरिजेस हो रही हैं, तो कंसेप्शन हमारी लेट हो रही है। बाय द टाइम पेशेंट कई बार फर्स्ट टाइम ओपीडी में आता है तो 38 ईयर्स 40 ईयर्स ये वाली एज होती है। तो इस एज पे अगर मैं फर्टिलिटी पोटेंशियल चेक करूं तो कई बार वो वैसे ही बहुत डिक्लाइंड वे में होता है कि मैं उनको अभी 3 महीने भी ट्राई नहीं करने को दे सकती। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, पर हमें बोलते हैं कि इससे पहले कि आपके खुद के सारे एग्स ख़त्म हो जाएं और आप डोनर एग की सिचुएशन में पहुंच जाओ, इट इज़ बेटर टू गो फॉर IVF। सो बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल, इट इज़ बिकॉज अब इतना डिलेड कंसेप्शंस हैं, दैट इज़ वाई IVF सेंटर्स इज़ नाउ द नीड ऑफ एन आवर। क्योंकि एंड द गुड पार्ट इज़ कि नाउ पीपल आर अवेयर ऑल्सो, और यही IVF सेंटर है जिसमें कि आप अपने एग्स प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर आप अवेयर हैं, आपको लगता है कि आप लेट प्लान कर रहे हैं, तो दैट वुड बी अ बेटर स्टेप। सो दैट इज़ वाई सो IVF में जो बूम हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी सोसाइटी में उसकी नीड है। So again for the related to the IVF, so IVF people see कि वो last resort है क्योंकि वो expensive भी है. So is that the case? देखिए हाँ, अगर सपोज करिए आपकी बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक है या मेल फैक्टर है, मेल फैक्टर इस तरीके से कि काउंट्स बहुत ही कम हैं, तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। या फिर आप हमारे पास आए, हमने देखा सारी चीज़ें ठीक हैं, ओके वी आर ट्राइंग, वी हैव गिवन यू इंटरिम ट्रीटमेंट, हमने इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कर लिया जिसको हम IUI बोलते हैं, बट 4 cycles हैव बीन गिवन एंड यू हैवंट कंसीव्ड, सो देन दैट ऑल्सो बिकम्स फैक्टर कि फिर तो हमें IVF की तरफ जाना ही पड़ेगा। सो IVF इज़ बिकॉज ऑफ लो एग रिजर्व, सीवियर मेल फैक्टर, बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक, एडवांस्ड मैटरनल एज, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कई बार IVF की तरफ डिसीजन लेके जाना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ स्टिल बेटर लेट देन नेवर। So again, why IVF is a good resort, we can say. या So according to you, what is the right time for couples to have IVF? right time, see first of all the right whenever they are planning to conceive, तो फर्स्ट अप्रोच जो आती है, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपका बेसिक वर्कअप होता है एज अ कपल, and then we see whether there is any issue or not. If not, then we do ask them, depending upon what the age they have come into, to try for next 3 months more. If not, then we start with a baseline treatment, we monitor the eggs, and if need arises we do introduce IUI, intrauterine insemination, if suppose still they are not getting the result, because हर cycle जब रिजल्ट नहीं मिलता है, इट एड्स टू इमोशनल फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो। बट अगर हमें 3-4 cycles हमने देख लिया IUI का भी और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन इट इज़ आइडियल टाइम टू स्विच टू IVF। So I hope you understand, audience, dear audience, you have understand that what is the right time for go for the IVF. All right. So again, any advice to the couples who is trying to conceive, and what is the best advice that you can provide to the देखिए trying to अगर conceive? अगर आप 35 से कम एज ग्रुप में हैं और आपको 1 year हो गया ट्राई करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या अबव 35 years में 6 months हो गए हैं बट रिजल्ट नहीं मिला है, इट इज़ डेफिनेटली अ गुड आइडिया टू सी योर गायनेकोलॉजिस्ट, ताकि आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं, और अगर उसमें कहीं भी ऐसा कोई इमिनेंट फैक्टर नज़र आ रहा है जिसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो टाइमली स्टार्ट हो जाए। Okay. Because जैसे nowadays it is just not about the PCOS, even endometriosis is on rise. Endometriosis is also one condition जिसमें कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसके एक्टोपिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन होती है। ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, और कई बार कोई और रास्ता नहीं बचता IVF के अलावा। Okay. So thank you, ma'am, for related to the fertility answering the questions. So now coming to the pregnancy part. So pregnancy, as again we already discussed, the people are planning in late 30s their pregnancy. So because people are focusing on careers, responsibilities, and everything. So planning these pregnancy in late 30s, so is it will go for the complications, or is it okay? देखिए क्या होता है कि जो लेट 30s में प्रेगनेंसीज प्लान हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वालिटी अफेक्ट हो रही होती है, तो कभी कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। या फिर कई बार इस एज ग्रुप में जब मदर कंसीव करती हैं तो उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, BP हाई होने का इशू, ये भी पाया गया है कि ये ज़्यादा होता है। तो आइडिया इज़ टू हैव अ गुड एंटीनेटल केयर,
एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्री कंसेप्शन केयर. तो आपका गुड प्री कंसेप्शन केयर, गुड एंटीनेटल केयर, ताकि हम टाइमली विजिट्स करें. अगर कोई चीज़ आई है, उसमें कोई डेवलप हुई है, कोई कोमॉर्बिडिटी आई है, तो उसको टाइमली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट किया जाए. देन ओनली वी कैन होप फॉर द गुड आउटकम. बट ऐसा नहीं है, आजकल बहुत प्रेगनेंसीज, इनफैक्ट आई एम सीइंग इन माई ओपीडी कि फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो 38-39 ईयर्स की एज पे ही आ रही है. तो द ओनली की इज़ टू हैव अ गुड एंटीनेटल केयर, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो अगर कोई डेवलप होती है तो हम उसको टाइमली डायग्नोज करके और डेफिनेटली वॉट एवर इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड वो हम दे सकें, सो दैट यू कैन हैव अ हेल्दी आउटकम. So to conclude that, if we are planning the pregnancy in the late 30s, okay, so in the late 30s, so is it probability might increase for complications, but it is okay if you are taking care of everything from end to end, Yes, yes, from yes. If you, preconception to exactly. delivery. If you are taking good care, if you are taking good antenatal care, and you are in touch with your obstetrician, then definitely you can achieve good outcome. So that is also a good point. So now coming to the next question regarding the pregnancy test. So during pregnancy, certain tests like neurosonograms are advised. So people might think कि यार ये डॉक्टर ना मतलब फालतू में ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं. समटाइम्स की एक्सपेंसिव भी होता है, कुछ इश्यूज तो है नहीं. इट इज़ अ मिथ कि मतलब करिया कराने चाहिए टेस्ट, डॉक्टर सबको देखिए, एडवाइस करते हैं. या न्यूरोसोनोग्राम तो हम हर प्रेगनेंसी में नहीं कराते. अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की एक गाइडलाइन है कि मिनिमम जैसे आपका एक इनिशियल अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जो कि हम सेफली ये डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, वो रूल देखते हैं. जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो लेवल 1 एंड लेवल 2 होते हैं. लेवल 1 एंड लेवल 2 का जो मेन पर्पस होता है, जैसे लेवल 1 का पर्पस होता है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब रूल आउट करना. बिकॉज अगर ये वाला प्रेगनेंसी अगर डाउन सिंड्रोम वगैरह से अफेक्टेड है, तो ऑब्वियसली वी डोंट लेट दैट प्रेगनेंसी टू गो कंटिन्यू, बिकॉज जनरली द बेबीज बॉर्न आउट ऑफ दीज प्रेगनेंसीज आर मेंटली रिटार्डेड. सेम वे गोज फॉर लेवल 2. लेवल 2 आपका मोटा मोटा सारा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी फाइंड आउट करता है. हाँ, अगर इनके बेसिस पे सपोज करिए लेवल 2 में हमने देखा कि इसके ब्रेन में हमें कुछ दिख रहा है एबनॉर्मल, तो हो सकता है हम फर्दर क्रोमोसोमल टेस्टिंग पे जाएं, फर्दर हम न्यूरोसोनोग्राम कराएं. तो देखिए, कोई भी मेडिकल टेस्ट अनजस्टिफाइड नहीं होता. कभी भी जब टेस्ट आपको लिखे जाते हैं, दे आर डेफिनेटली अप्रूव्ड बाय दी गाइडलाइंस बिहाइंड, जिसके बेसिस पे हम ये इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं. Every test is not routinely recommended for everybody. Neurosonogram is specifically restricted for certain class of population. For example, fetal echo. Fetal echo is now in a fashion, right? But generally जो low risk population होते हैं हम उनमें नहीं कराते. या तो पेशेंट डायबिटिक होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हुआ है, या एल्डरली एज ग्रुप में है, या हमको फीटल हार्ट ऑस्कल्टेट करते समय कोई ऐसे डिफेक्ट हर्ड हुआ है, देन ओनली हम फीटल इको की तरफ जाते हैं. तो जब भी कोई टेस्ट लिखा जाता है तो डेफिनेटली वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन होती है, तभी लिखा जाता है. इट्स नॉट अननेसेसरी रिटन. So again, audience, so to conclude that we should believe in the doctors, and because there is always a reason to get to write that test and to go for this for diagnosis, to have a proper treatment. Now again, there's one famous question we can say everybody want to know about it, because people say कि डॉक्टर तो हमेशा सी सेक्शन के लिए एडवाइस करता है. ये एल्डरली पीपल से कि डॉक्टर हमेशा सी सेक्शन के लिए बोलेगा, आप काम करो, घर का काम करो, सारे काम करो, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी. तो इज़ दैट द केस कि सी सेक्शन हमेशा डॉक्टर एडवाइस करता है? नहीं, देखिए, ये सिर्फ सोसाइटी में एक मिथ है. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन एडवाइस करता है. इट इज़ अ मिथ. बिकॉज अगर लेडी की प्रेगनेंसी का लेबर स्मूथली चल रहा है, फीटल हार्ट ठीक चल रहा है, बच्चे ने कोई पॉटी नहीं करी है, जिस तरीके से बेबी का हेड डिसेंड करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, तो कोई भी नॉर्मल डिलीवरी को अपोज नहीं करेगा. वी विल लेट इट हैपन. इट इज़ ओनली व्हेन इनमें से कोई भी फैक्टर एबनॉर्मल होगा, या बेबी ने पॉटी कर दी, बच्चे की धड़कन कम है, ब्लीडिंग हो गई प्रेगनेंसी में, तो इन केसेस में आपको सिजेरियन करना पड़ेगा. सी, इट इज़ नेवर अबाउट द मोड ऑफ डिलीवरी फॉर डॉक्टर्स. डॉक्टर्स ऑलवेज कंसिडर द सेफ डिलीवरी उस समय पे जो उस मदर के लिए है. वन साइज डजंट फिट ऑल. एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, उसकी जर्नी डिफरेंट है, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके इन्वेस्टिगेशंस, उसका पूरा जर्नी प्रोफाइल, वो सब डिफरेंट होता है, एंड उसकी इंटरनल फाइंडिंग्स भी डिफरेंट होती है. डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली वी सी ओके हम किसको नॉर्मल ट्रायल करते हैं, किसको इलेक्टिव सिजेरियन बोलना है. नॉर्मल डिलीवरी
में भी 70% जो ट्राई करते हैं उनकी नॉर्मल हो जाती है. इट इज़ ओनली द 30% लैंड अप इनटू सिजेरियन. और वो भी सिजेरियन में इसलिए लैंड अप करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेबी की सेफ्टी के लिए. अगर किसी की धड़कन बच्चे की कम हो रही होगी तो वी विल नॉट कीप सिटिंग कि नहीं हम नॉर्मल ही कराएंगे एंड लेट द बेबी हैपन वॉट एवर हैपन टू द बेबी. ऐसा अप्रोच नहीं रखा जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज द सेफ्टी ऑफ डिलीवरी rather than the mode of delivery. So it's about the health of the baby and health of the mother we talk Yes, about, right? yes. So accordingly the doctor plan it. Yes. So the final outcome. Again, this is coming to the ectopic and chemical pregnancy. So what is this all about? Can you explain what is ectopic or chemical pregnancy? Yeah. See, what happens is whenever, as I told you, the egg is picked by the tube and the sperms travel and fertilize the egg in the tube. अगर ट्यूब हमारी फंक्शनल हैं जो आइडियली होना चाहिए तो ये फर्टिलाइज्ड एग मूव करेगा, ट्रैवल करके यूट्रस में जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा. ये होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी. लेकिन अगर किसी वजह से ट्यूब का मूवमेंट फंक्शन ख़राब है और वो वहीं पे ही अटक गया फर्टिलाइज्ड एग, तो वो प्रेगनेंसी वहीं बड़ी होने लगेगी, यानी कि ट्यूब में, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल लोकेशन फॉर दैट. दैट इज़ नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. मोस्ट कॉमन साइट फेलोपियन ट्यूब ही होती है, बट हालांकि ओवेरियन प्रेगनेंसीज भी डॉक्यूमेंटेड हैं, एब्डोमिनल प्रेगनेंसीज भी डॉक्यूमेंटेड हैं. और इसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है कई बार, क्योंकि ट्यूब की एक अपनी कैपेसिटी होती है स्ट्रेच होने की. जब यूट्रस बढ़ता है तो यूट्रस में कैपेसिटी होती है कि पूरा 9 महीने तक वो बड़ा हो सकता है. ट्यूब में इतनी कैपेसिटी नहीं होती. मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 या 2 महीने ही वो स्ट्रेच हो पाएगी, उसके बाद वो फट जाएगी. अगर वो फट जाती है तो लेडी को ब्लीडिंग होगी अंदर, वो शॉक में जा सकती है. इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. तो इट हैज़ टू बी डायग्नोज्ड एट एज अर्ली एज पॉसिबल. इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी प्रेगनेंसी होती है हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं अराउंड 6 to 7 वीक्स के बीच में, ताकि हम ये डॉक्यूमेंट कर सकें कि हाँ प्रेगनेंसी यूट्रस में है, बच्चे की धड़कन ठीक है एंड ऑल दैट. और जो आपने सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा, केमिकल प्रेगनेंसी इज़ जनरली अ हार्मलेस प्रेगनेंसी. इसमें क्या हुआ कि एग फर्टिलाइज हुआ, आपके जो हार्मोन्स होते हैं बीटा HCG वो थोड़े से रेज हुए, बट प्रॉबली वो इतना हेल्दी नहीं था, तो वो कहीं इम्प्लांट नहीं हुआ और वहीं पे डिके होना शुरू हो गया और लेवल थोड़े से बढ़े और फिर वो गिरने शुरू हो गए. तो ये इतना हार्मफुल कंडीशन नहीं होता, ये हार्मलेस कंडीशन है. पेशेंट के सिर्फ थोड़े से पीरियड्स डिले होते हैं, उसको कई बार पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट थी और थोड़े समय बाद पीरियड्स आ जाते हैं. हाँ, हमारे पास आ जाती हैं तो हम टेस्ट कराते हैं, हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है ओके दिस इज़ द फैक्ट कि ये बायोकेमिकल प्रेगनेंसी रही थी. Okay. So ma'am, now coming to this, now we have a rapid fire round. So I'll ask a question, you can just give the one answer in one word. Okay. Okay. So it is a myth or fact that stress impacts fertility. वेरी मच स्ट्रेस, बिकॉज आपकी पूरी HPO एक्सिस को हिला देता है. दैट इज हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड देन यस इट डज अफेक्ट फर्टिलिटी, इट डज अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. It's a fact. Yes. Any one habit or man or woman should follow if they are planning to conceive. If they are planning to conceive, then a lady should be taking folic acid preconceptionally. And one thing to avoid during pregnancy. Self medication. One health checkup woman should never skip. Pap smear. This is about. दिस इज़ पैप स्मीयर जो होता है वो सर्विक्स पे से जो वाटरी सिक्रीशंस होती हैं उनको लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है. ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है. Okay. क्योंकि फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर काफ़ी कॉमन होता है, तो ये उसका एक स्क्रीनिंग मेथड होता है. क्योंकि कभी भी कैंसर आने से पहले 10-15 साल पहले उसमें सेल्स में गड़बड़ दिखेगी. Okay, I'll come to that question about because these cases are also increasing. So is intimacy safe during pregnancy? Yes, it is safe, especially in the second trimester. मगर कुछ conditions होती हैं जिसमें हम avoid करने के लिए बोलते हैं. So if your doctor hasn't advised against it, then yes, it is safe. So come again. Thank you for this rapid fire question answers. So coming to this cervical cancer. So because the cases are increasing, I read somewhere that cases are increasing for cervical cancer. So Its awareness is increasing. Awareness that is why now people are more aware. Irregular bleeding होती है तो वो पहुंच जाते हैं, वो diagnose हो जाते हैं. So मैम इसके लिए कोई वैक्सीन है? Yes, there is a HPV vaccination. In fact अभी recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अपने शेड्यूल में भी डाली है.
इनफैक्ट अभी अनाउंसमेंट भी हुई थी कि 1 डोज फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा फीमेल्स को. तो HPV वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच देयर इन द मार्केट विच रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ कैंसर टू द ट्यून ऑफ 80 to 90% इफ़ गिवन एट अ राइट एज. लेकिन सपोज एज यू टॉक अबाउट एज, अगर सपोज किसी को मोर देन 40 ईयर्स, तो वो भी अगर इसकी 9 to 45 ईयर्स इसकी रिकमेंडेड एज है. इनफैक्ट जो बेस्ट एफिकेसी देखी जाती है वो 9 to 26 ईयर्स पे देखी जाती है. आफ्टर 26 to 45 ईयर्स में शेयर्ड क्लिनिकल डिसीजन से मिल के, मतलब आपस में डॉक्टर एंड पेशेंट एंड उनका पार्टनर ये बैठ के हम डिस्कस करते हैं वेदर वी शुड टेक द मेडिकेशन और नॉट. अपार्ट फ्रॉम दैट अ रेगुलर स्क्रीनिंग मेथड लाइक अ पैप स्मीयर विद HPV टेस्टिंग, ये हम मेथड करते हैं जिससे हम स्क्रीन करते हैं कि ओके द सेल्स आर ऑल ओके और नॉट. और जनरली इसकी फ्रीक्वेंसी एवरी 5 years की जाती है. So there is one more question, ma'am, related to the pregnancy. The doctor advises that there is a follicular study happens, okay? But people say कि यार ऐसा कुछ नहीं होता यार, कि मतलब ड्यूरिंग द साइकिल और आफ्टर, कि अगर जैसे आप इंटरकोर्स करते हैं तो कंसीव हो जाता है. तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मिथ है कि अब तो कभी भी कुछ भी जब कंसीव होना होगा तो होगा. लेकिन डॉक्टर एडवाइस करता है कि पर्टिकुलर फॉलिकुलर स्टडी करके कि यार ये मतलब ये पर्टिकुलर डेज है. तो वही देखिए हाँ, जब that वो is true. आपका फर्टिलिटी का जब वर्कअप चल रहा होता है और जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो डेफिनेटली फॉलिकल स्टडी की जाती है. फॉलिकल स्टडी होता क्या है? बेसिकली आप एग्स को स्टडी कर रहे हो कि एग्स का साइज कैसे बढ़ रहा है. आप एग नहीं देख पाते हो, आप एग जिसके अंदर होता है फॉलिकल, उस फॉलिकल का साइज देखते हो कि वेदर दिस इज ग्रोइंग एट अ राइट रेट और नॉट, एंड ठीक टाइम पे वो रप्चर हो रहा है कि नहीं, ताकि अगर इनमें से कहीं पे प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ रेट में प्रॉब्लम है या रप्चर में प्रॉब्लम है, तो आपको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दे दिया जाए. मोर ओवर व्हेन वी नो कि ओके दिस इज, हमें स्टडी से पता लग जाता है ओके ये एग इस समय पे मैच्योर हो गया है, तो ऑफ कोर्स वो 2-3 डेज ही आपके लिए असेंशियल हो जाते हैं कंसीव करने के लिए. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल that every cycle you are trying for at least 10 intercourses to conceive. So that is true. We can say it's not a myth कि डॉक्टर जो बताता है that is a true कि आप तभी मतलब कंसीव करने के हाँ, चांसेस बढ़ अगर आप जाते हैं. खुद से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपने आप को पूरा टाइम दे दिया है, जैसे मैं बोल रही हूँ मोर देन 35 ईयर्स पे 6 months और लेस देन 35 पे 1 year, एंड नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो जो वर्कअप है उसमें फॉलिकल मॉनिटरिंग से डेफिनेटली उससे हमें हेल्प मिलेगी दैट व्हेन इज द एग गेटिंग रेडी. And we can see the results. यस. If you want to give any message to any woman or couple based on the experience to avoid PCOS or PCOD, so that they can not avoid, they can prevent that. Again, lifestyle management. I think you please invest your time into your weight management. That goes in a long run, and see to it what you are eating. Check your plate always. Because as you said, okay, it is a, we can say it is a epidemic type of thing. Yes, yes. One more question regarding any advice again for the couple or the woman so that they can have the normal delivery, because everybody want to prefer that. See, again, then I'll say ki you be active in your pregnancy. If a doctor hasn't advised you bed rest, then be active. Then you can join antenatal, prenatal yoga classes and all. Regular exercises are also explained in the OPD. But see, not all patients can go for a normal delivery, right? So generally what happens, suppose करिए अगर बेबी उल्टा है, ब्रीच है, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे मैं तो शुरू से एंड तक एक्सरसाइज करती आ रही हूँ, बट अब ब्रीच है तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी अ सिजेरियन सेक्शन. तो डोंट गेट पैरानॉइड विद दैट आइडिया. यू डू योर बेस्ट, लेट डॉक्टर डू योर बेस्ट, एंड लेट द लेबर टेक इट्स कोर्स, एंड देन whatever outcome will there be, you just accept it with the smile on your face. But generally as a doctor I will advise कि be active, आप exercise proper करिए, डॉक्टर अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हर आउटकम में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता. कभी कभी आप ही के बेबी के सेफ्टी के लिए सिजेरियन में ऑप्ट करना पड़ जाता है. तो इन केस अगर ऐसा भी होता है तो एक्सेप्ट इट. Ma'am, there is one more question related to the nutrition of the pregnant women. So लोग कहते हैं कि नहीं आपको डबल खाना खाना है, तो मतलब 2 आदमी का खाना है बिकॉज यू हैव अ बेबी. तो ऐसा कुछ है कि मतलब नहीं आपको मे बी थोड़ा बहुत खाना एक्स्ट्रा खाना है, या फिर देखिए myth नॉर्मली effect जो है डाइट होती है रफली 1.5 times बढ़ती है. वो नॉर्मली आप एक बार में ही ऐसे नहीं होगा कि अगर पहले आप 2 चपाती खा रहे थे तो अचानक से 3 आप खाना शुरू हो जाओगे. सो की होती है
दैट कीप मंचिंग एवरी 3 hours. तो जनरली जब आप ये वाला डिक्टम फॉलो करते हो तो आपका जो डाइटरी अगर टोटल हम कैलकुलेट करें तो वो डेफिनेटली जो नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी आपका इंटेक था उससे बढ़ा हुआ ही मिलता है, एंड विच इज़ स्मूथ. और हम जो अब रेगुलर एंटीनेटल केयर कर रहे हैं, जो हम आपको फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं, डेफिनेटली वी कीप अ चेक ऑन योर वेट गेन, ऑन द ग्रोथ. अगर हमें कहीं भी कोई भी फैक्टर ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रॉपर नहीं जा रहा है, ये ग्रोथ थोड़ी इनएडिक्वेट है, then we definitely intervene, we add protein supplements, we ensure that what other medical steps can be taken so that your baby should grow healthily. So thank you for the advices, ma'am. So I think audience, दिस इज़ अ वेरी रियली इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट एंड एपिसोड. तो अगर आप मतलब प्लान कर रहे हैं कंसीव करने का, मतलब एज अ कपल, तो आप इस पॉडकास्ट को देखो, एंड तक देखो. यू हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स विद यू, एंड डू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर एवरीथिंग ऑन टाइमली बेसिस. तो टाइम से अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और पूरा प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो होपफुली एवरीथिंग इट विल बी अ फ्रूटफुल थिंग. सो एट एनी एज इट कैन बी डन. टू कंक्लूड दैट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट ड्यू टू द मेडिकल एडवांसमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर वो मिटिगेट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं. सो यू शुड गो फॉर दैट. एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, please share our channel and share with your friends and families who require this knowledge and awareness, because Dr. Sadhna has also taken out this time from his busy schedule. He has also just came from the clinic only for this podcast. So utilize this information and share it with your friends. So ma'am, if you want to say something about, if you can just share this podcast regarding the podcast, you can say with the audience. So basically आजकल women health care preventive modality पे ज़्यादा है. मैं एक ही चीज़ कहूँगी, take care of yourself, take care of your weight, your lifestyle. That goes in a long run in building a healthy family. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.